طلبا گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول اویلیاں آپ کے لیے مختلف مواقع پر مختلف پروگرام چھوٹے چھوٹے تاکہ آپ اپنا سکیں اور آنے والے وقت کے لیے آپ تیار ہو سکیں. کل یکم محرم الحرام 1448 ہجری نیا سال اسلامی شروع ہو رہا ہے. تو نئے سال کی میری طرف سے سکول کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد ہو. تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے. یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس حوالے سے صبح بھر میں چھٹی بھی ہوگی تلاوت کے لیے. آپ کے سکول کے زین العابدین سے ملتمس ہوں دعائیں اور تلاوت کلام پہ شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا. زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا. کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور. حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور. ہوں گے حضور انور. شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا. شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا. زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا. کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. رنجو ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی. رنجو ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی. رہتا نہ ہوگا باقی. تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا. تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا. زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا. کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا امتی ہوں. کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا امتی ہوں. میں ان کا امتی ہوں. مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا. مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا. زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا. کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو لیکن. محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو لیکن. ہوگی سبھی کو لیکن. آقا کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا. آقا کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا.
زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، آپ کے اساتذہ کرام نے ابھی آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ کل سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور کل جو ہے اس کی یکم یعنی پہلی تاریخ ہے. تو نئے اسلامی سال کا آغاز الحمدللہ کل سے ہوگا سن 1448 ہجری کا. اب یہ جو پہلی تاریخ ہے یکم محرم الحرام، اس کو اسلام کی تاریخ میں ایک اور یادگار حیثیت حاصل ہے. وہ کیا ہے کہ یکم محرم الحرام کو اسلام کی تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام حضرت عمر ہے، جن کا لقب فاروق ہے، جن کی کنیت ابو حفص ہے اور جنہیں فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں. تو ان کی شہادت کا جو واقعہ تھا یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. اور یہ اتنا بڑا ثانیہ تھا اسلام کی تاریخ کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لَيَبْقَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ مَوْتِ عمر. عمر وہ شخص ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے گا نا تو اسلام بھی اس کے جانے پہ روئے گا. تو یہ بہت بڑا نقصان تھا امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا، کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے ان کی شہادت ہوئی یکم محرم الحرام کو. تو اسی مناسبت سے بس زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے، کل کو جو چھٹی ہے آپ کی وہ بھی اسی مناسبت سے ہے کہ یکم محرم الحرام کو ان کے یوم شہادت کی مناسبت سے ہمارے صوبہ میں حکومت نے چھٹی کا اعلان کیا ہے. یہ بہت زبردست اور احسن قدم ہے. ہم اس پر جو ہے ان کو پوری حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ایک زبردست قدم ہے. اب یہ کون شخصیت ہے تھوڑا سا تعارف میں کرا دوں. ان کا جو خاندان تھا اس کا نام ہے خاندان بنو ہدی. اور ان کے خاندان میں اوپر چل کر جو ہدی نام کا ایک شخص ہے نا، ہدی کا جو والد ہے اس کا نام تھا کعب ابن لبئی. اور یہ کعب ابن لبئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ شخصیت ہے. کعب سے جا کر آگے دو بیٹوں کی اولاد الگ الگ ہو جاتی ہے. ایک بیٹے کی اولاد میں حضرت عمر ہیں اور دوسرے بیٹے کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنی ہاشم ہے. تو یہاں سے جا کر جو ان کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے. اب یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حیثیت عطا کی تھی کہ ان کے اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے دعائیں مانگی تھی. وہ مشہور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ تو اسلام کو عزت عطا کر. اور اسلام کی عزت کے لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نام پیش کیے تھے. اس وقت جو صاحب حیثیت اور بڑے اور قوت والے جو لوگ تھے وہ دو ہی تھے پورے اس دھرتی پر. ایک کو حمر ابن شام کہتے ہیں جسے ابو جہل کہتے ہیں، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب دعا دو کا نام لے کر مانگی ہے تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی. تو اسلام کے بالکل آغاز میں جنہیں قرآن پاک نے سابقون الاولون کا ان میں شمار ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ 40ویں نمبر پر جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. یہ حدیث آپ کو مسجد میں یاد بھی کراتے ہوتے ہیں. وہ جو 40 چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں نا ان میں یہ حدیث جو بچے مسجد میں جاتے ہیں ان کو یاد بھی ہوگی. کیا؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ نے حضرت عمر کے دل اور ان کی زبان پہ حق بات کو جاری کر دیا ہے. اور کیسے جاری کیا اس کی ایک مثال ذکر کروں کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 27 مقامات ایسے ہیں
पूरे कुरान पाक में 27 जगह ऐसी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसले में मशवरा पूछा या किसी ने आकर मशवरा दिया, उस मसले में हजरत उमर ने भी मशवरा दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर जो मशवरा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया था ना, अल्लाह ने उसी मशवरे को कुरान बनाकर अपने नबी पे नाज़िल किया है। और ये वाक़या सिर्फ एक बार नहीं हुआ, शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह लिखते हैं कि 27 बार हुआ है। कुरान पाक में 27 जगह हैं ऐसी कि जहाँ पर जो है मशवरा हजरत उमर देते हैं, अल्लाह की ज़ात उनके मशवरे को कुरान बना देते हैं। और वो जो शख्स है कि जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब एक बात इरशाद फरमाई थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये कितना बासलाहियत है, ये कितना जो है वो साहिब किरदार है, कितनी जुर्रत वाला है, कितनी हिम्मत वाला है, जिसे अल्लाह के नबी ने इस्लाम की इज़्ज़त के लिए मांगा है। इसकी हैसियत और मकाम क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में ये जुमला इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस है जी बुखारी शरीफ में, सियाह सित्ता में जो 6 बड़ी हदीस की किताबें हैं, उनमें से जो सबसे पहले दर्जे की किताब है असखुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, जिसके बारे में हमारी सोच और नज़रिया ये है कि कुरान पाक के बाद दुनिया की सबसे सही तरीन किताब कौन सी है जी? बुखारी शरीफ को कहते हैं। अब उसमें ये जुमला है किसका? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फलम अरा अब करीयम मिनन नासे यफरी फरीयहु। अब इससे बड़ा जुमला जो है मैं समझता हूँ कि किसी के लिए किसी की ज़ुबान से नहीं निकल सकता कि जो इतना बड़ा जुमला अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर के लिए इरशाद फरमाया है। जुमला क्या था कि लम अरा हब करीयन मिनन नास यफरी फरीयहु, कि मैंने लोगों में इतना बहादुर और जुर्रत वाला कोई आदमी नहीं देखा कि जो इतने हुस्न तदबीर और कुव्वत के साथ अपने काम सर अंजाम देने का आदी हो, कि जो कुव्वत, जो जुर्रत, जो बहादुरी, जो शुजाअत और अपने कुव्वत के साथ काम करना और हुस्न तदबीर अल्लाह ने हज़रत उमर को अता की है ना, ऐसा शख्स मैंने कायनात में कोई नहीं देखा है। अब आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के नबी जिसकी तारीफ में ये जुमले इरशाद फरमा रही हूँ। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए ना, तो आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ जो निज़ाम हुकूमत है, जिसके लिए रब ने कुरान में कहा था वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, अल्लाह ने तमाम अदियान पर इस दीन हक़ को गालिब करना था। और जो निज़ाम अल्लाह के नबी दे के गए थे, उस निज़ाम का जो सबसे पहला वारिस और पैगम्बर का जान नशीन है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जब आपका दौरे खिलाफत ख़त्म हुआ ना, तकरीबन 2 साल का अरसा दौरे खिलाफत आपका ये अरसा ख़त्म हुआ, आपकी वफ़ात हो गई, तो वफ़ात से पहले उन्होंने इस मनसब के लिए खुद जिसका इंतखाब किया है वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये फ़ैसला किया ना, तो फ़ैसला करने से पहले हज़रत उमर को बुलाया था अपने घर में और बुलाकर कहा था कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि अपने बाद मुसलमानों के इस निज़ाम का जो पूरा सिस्टम है आपके सपुर्द कर जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिद्दीक़ अकबर ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, फरमाया कि उमर तुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज खिलाफत को उमर की ज़रूरत है। ये उनका जुमला था। इसलिए जब क़यामत के दिन अल्लाह की ज़ात मुझसे पूछेंगे ना कि अबू बकर तूने क्या किया, तो मैं उस वक़्त कह सकूँगा कि या अल्लाह तेरी धरती पर इस आसमान के नीचे जो सबसे ज़्यादा बासलाहियत और फजीलत वाला आदमी था, मैं पैगम्बर का ये निज़ाम खिलाफत उसके सपुर्द करके आया हूँ। और फिर अजीब बात ये हुई, आखिरी बात कह रहा हूँ, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा, धूप भी आ गई है, आप जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा आपको धूप में नहीं बिठाते। इंशाअल्लाह क्लास में हमारे असातिज़ा किराम आपको ये चीज़ें समझाते रहते हैं, हम भी आपको समझाएंगे, हमारा वक्त इसीलिए है। इंशाअल्लाह ये चीज़ें असम्बली में अंदर पीरियड के दौरान ये साथ साथ आपको हम बताते रहेंगे। ये एक ही गुफ्तगू में ये चीज़ें ख़त्म भी नहीं होती, फ़ज़ाइल और उनका तारुफ़ और ये तारीख़ और ये सीरत, ये चीज़ें। तो आखिरी बात एक कह रहा हूँ कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार है ना, और समझ गए कि आप बीमारी से जानवर नहीं हो सकूँगा, तो फिर आपने जो नाम लिखा ना, एक चीज़ पर नाम लिखा किसका? अपने बाद खिलाफत के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, और नाम को उसी तरह बंद करके ना ले आए मुट्ठी में, ऊंची जगह खड़े होकर लोगों को मुखातब करके तमाम सहाबा को कहा कि भाई मैंने अपने दुनिया से जाने के बाद अपने जान नशीन के लिए और खिलाफत के लिए एक नाम का, एक शख्स का नाम तजवीज़ कर दिया है, सबको कबूल होगा ना? सब ने कहा जी ठीक है। एक आदमी खड़ा हो गया, एक आदमी खड़ा हुआ, कंज़ुल माल की रिवायत है, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा जी
खड़ा हुआ तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, हाँ भाई तुझे क्या मसला है? तो वो आदमी जो खड़े हुए थे ना, वो कहने लगे कि ये अबू बकर अमीरुल मोमिनीन, मैं हजरत उमर के अलावा आपके बाद किसी के हाथ में बैत नहीं करता। अब नबी और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो तहरीर खोली और कहा कि आप फिर आकर खुद ही इनको पढ़ के सुना दें मैंने किसका नाम लिखा है। तो नाम किसका लिखा हुआ था? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। और ये जुमला कहने वाली शख्सियत जो खड़ी हुई थी, ये कौन है? ये सैयदना अली अल मुर्तज़ा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा की अगर मैं बात करूँ ना, तो अली अल मुर्तज़ा और नबी अकरम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी तो आपस में इतना ताल्लुक़ था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बेटी है सैयदा उम्मे कुलसूम। वो सैयदा उम्मे कुलसूम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये दामाद भी लगते हैं, जिन्हें ये शहादत भी नसीब हुई है कि वो पैगम्बर के रोज़े में आपके करीब 7 दफन है। जिस जगह को अल्लाह के नबी ने जन्नत कहा है, तो ये वो शख्सियत है। तो ये हमारे मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। अब हमारी कामयाबी क्या है कि हम अपने अकाबिर को, अपने असलाफ को, इन मुक्तदा और पेशवा शख्सियात को याद रखें, उनकी सीरत को पढ़ें, उनकी ज़िंदगियों पे अमल करें, उनको अपने लिए नक्शे राह बनाएं, फिर हमें कामयाबी और सुरूखुरू हासिल होगी। उससे सबक सीखें। गैर मुस्लिम भी ये तस्लीम करते हैं कि अगर दुनिया में एक उम्र और हो जाता तो दुनिया से कुफर का नामो निशान मिट जाता। और गांधी ने जो है वो अपनी कबीना के सामने एक जुमला कहा था। उसने कहा था ना कि अगर तुम जो है वो सही निज़ाम कायम करना चाहते हो अदल इंसाफ का, तो तुम्हारे लिए लाजम है कि तुम हज़रत फ़ारूक आज़म की सीरत का मुताला करो। तो गैर मुस्लिम जो है वो दावत दे रहा है, तो फिर मुसलमान उसका क्यों ना करें मुताला। इसलिए हम सब का ये काम बनता है। तो कल की जो छुट्टी है वो इसी सिलसिले में है। बाकी इंशाल्लाह क्लास में ये चीज़ें हम आपको समझाते और बताते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जी मुफ्ती हफीज़ुर रहमान ताहिर साहब, कुछ अशार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु की शान में, और फिर आपको छुट्टी देते हैं। कल यकम मुहर्रम 1448 मुसलमानों का नया साल जो मुहर्रम से शुरू होता है वो कल शुरू होगा। हुकूमत जो हमारी सूबाई है वो हमेशा छुट्टी देती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु के इस दिन के ऊपर कल आपको छुट्टी होगी। परसों इंशाअल्लाह ताला आपने वक्त के ऊपर स्कूल आना है। खुलद की राह के राहबर को उमर कहते हैं, अदल व इंसाफ के पहकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं, जिसकी हर मौज से इंसाफ के मोती निकले उस गोहरबार समुंदर को उमर कहते हैं, जिनके उफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाए तो अरब कांप उठे, आप तलवार उठाए तो अरब कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं, तूने महबूब की हुर्मत पे जुबान खोली है, काट डालूंगा तेरे सर को उमर कहते हैं, लश्कर को उमर कहते हैं, जंग में कुफ्र में ताकूत के सर पर दरवेश, जंग में कुफ्र में तागूत के सर पर दरवेश, तेज चलते हुए खंजर को उमर कहते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों पे अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहतरम प्रिंसिपल साहिब के हुक्म के मुताबिक, और जैसा कि हमारी ये रवायत भी है कि हम जब भी कोई ऐसा मौका आता है किसी साहबी रसूल के ऊपर, तो कम अज़ कम हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो छुट्टी हो रही है ये छुट्टी नहीं हो रही, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है, वजह है, शाबाश। और एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी है, और वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर गुफ्तगू की जाए तो महीने और साल भी कम पड़ जाएं। अल्लाह पाक आपका मेरा हम सब का हामी और नासिर हो। अपनी खुसूसी दुआ में प्रिंसिपल साहब, तमाम असातिज़ा कराम, खुद को, अदारे को, तमाम जिंदा मुर्दा लोगों को भी याद रखने। अल्लाह पाक आपका मेरा हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ के लिए सजाद कारी सजाद खान साहब के आगे में मुल्तमिस हूँ कि वो दुआ फरमाएं।
الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أوصي عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله